हम उन्हें जानते हैं अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, हम उन्हें जानते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए, हम उन्हें जानते हैं पति के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन ये वाला रूप जो है वो कभी कभी ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब मिलता है तो हर दिल कह उठता है कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ओए होए। तो हमारी मॉम्स के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। लेट्स वेलकम देम ऑन द स्टेज। गलत कर डाला तेरा, नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। शिट बदल जाएगा ये नजारा, हाँ बदल जाएगा ये नजारा। गदर ने किया है इशारा, ओए 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 नहीं नहीं, आपको पता है ऐसे में नहीं जाने देगा आप लोगों को। इधर आ जाओ। इतने सारे अब्बास मस्तान एक साथ, आओ आओ। हाँ सॉरी, अब्बासी मस्तानी है सारी। वाह, इतना अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। आपको यहाँ पे देखने के लिए आपके साथ कौन कौन आए हैं? फुल फैमिली। अच्छा, आपके? फुल फैमिली। फुल फैमिली। फुल फैमिली। तो और कोई आवाज नहीं कर रही है। इन चारों की फैमिली और फ्रेंड्स जितने आए यहाँ पे आवाज करो एक बार। खाली यहाँ पे आप चारों के फ्रेंड्स और फैमिली आए हुए हैं क्या? सबने यहाँ पे बहुत अच्छा। तो आपके पतिदेव है यहाँ पे आया है? आप उन्हें घर पे क्या कह के बुलाती है? हाँ, सांभळो। सांभळो वो सुन लेते हैं? ऐसा तो कितनों के सांभळो हैं। आप आगे आइए, आप ऐसे ढकिए मत। आप क्या कह के बुलाती हैं? या कुछ नया? क्या? नहीं सीन क्या मतलब सुनो। ये रे ऐसे कौन बोलता है? वे सुनो। तू गुजराती छो तो मैंने क्या सुनो? गुजराती में शू કહો છો બોલો? सीन सांभळो छो। સાંભળો છો? તમે શું કહીને બોલાવો? ઓય સાંભળો ને। સાંભળો છો અને સાંભળો ને માં અંતર ખબર છે તમને લોકોને? સાંભળો છો એટલે પ્રેમથી, સાંભળો ને એટલે જે સાંભળતો ન હોય ને પતિ એને
એ સાંભળો ને, હવે કેટલી વાર કહેવાનું તમને, એક વસ્તુ સાંભળતા નથી તમે. આ તો બધા પતિના ઓણામાંથી હો નીકળ્યું. હા સાચી વાત. તમે શું કહીને બોલાવો? સાંભળો. એ તમારા ચારોને એક તો નથી ને? આ શું બધા કઈ ખબર? એવું છે, એક કામ કરીએ આપણે, આ વસ્તુને હવે અહીંયા સાબિત કરીએ. ઓકે, આપણે સાબિત કરીએ. અહીંયા એક પરફોર્મન્સ થઈ જવા દો, એની પછી હું તમને પાછો સ્ટેજ પર બોલાવીશ. એટલે તમે અત્યારે ખાલી અહીંયા નીચે સાઈડ પર આવી જાઓ. આ એક પરફોર્મન્સ પછી હું આમને સ્ટેજ પર બોલાવવાનો છું અને આ વસ્તુનું હું તમને સાબિત કરીશ. શું સાબિત કરીશ? એક નાનકડો બ્રેક પછી. પ્લીઝ આવી જાઓ. લેટ્સ વેલકમ યશવી ઓન ધ સ્ટેજ. યશવી માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, eso es tomado y ¿Y dónde está mi gente? Me fue a coger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Dos, tres, luego. और इनके जो रिस्पेक्टिव पतिदेव हैं उनसे कहूंगा यहाँ पे नीचे आ जाए प्लीज. उनको स्टेज पे हम नहीं बुलाएंगे, जल्दी आ जाए. जिनको लगता है कि वो उनके पति हैं वो यहाँ पे आ जाए प्लीज. आ जाओ, आ जाओ. आपसे ज्यादा कुछ नहीं करवाएंगे, जो करवाना है इनसे करवाना है. यहाँ आ जाओ. और घूमर वाली यहाँ पे. अच्छा, अब आपको जो है ना सबको लाइन में आ जाना है यहाँ पे. हाँ, छोटा सा गेम है, खाली एक छोटा सा गेम है. ये जो क्या 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 कह के बुलाते हो, सुनते हो, સાંભળો છો, સાંભળશે. હવે બધા સાંભળશે તમારું. સો આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ની સામે 5. મેં કીધું તું ને 4 ના એક જ છે કોઈ. આ 1 2 3 4 5 6 તમને મોડું યાદ આવ્યું? 7 બે ઘરે છોડીને આવ્યા છો. આ 8 ને 9 પરફેક્ટ. હવે તમારે તમારા વરને ઓળખવાના છે આમાંથી. તમારા કયા? ફર્સ્ટ વન. શિષ્ટાચારમાં ઊભા છે અત્યારથી જ બૈરીની સામે. ઘરે એકદમ આમ ખબર પડતી હશે શું હાલત થતી હોય તમારી. બરાબર છે, એકદમ સાચે. પણ હવે આમાં એક નાનકડો ટ્વિસ્ટ છે. તમે જ મને આઈડિયા આપ્યો કે અમે બધા જ અમારા વરને શું કહીએ? સાંભળો છો. તો હવે તમે તમારા વરને આ સાંભળો છો થી ઓળખી શકીએ કે નહીં, આપણે ટ્રાય કરીએ. તો તમારે તમારા વરને ખાલી અવાજથી ઓળખવાના છે. બરાબર છે? તો બધા પલટી જાઓ. ચલો. હા, હવે સીધું જોવાનું. કોઈ રાઈટ લેફ્ટ થી આમ પેલી ડાબી આંખોથી નહીં જોશે, આમ સાઈડ પરથી. આમ જે ચીટિંગ કરશે એટલે એકલામાં ડાન્સ કરવો પડશે ચીકણી ચમેલી પર.
ઓકે, હવે એક પછી એક અહીંયા પતિદેવ, તમારે એ જ કહેવાનું છે, સાંભળો છો, બીજું કહીશ ને, ખાલી સાંભળો છો. જોઈએ, અગર તમને લાગે કે તમારા પતિનો અવાજ છે તો તમારે ખાલી હાથ ઉપર કરવાનો છે, પાછળ ફરીને નથી જોવાનું. આ બીજી વાળી બહુ અવાજ કરતી છે. ચૂપ રહો ને 2 મિનિટ. બિચારા સાંભળો છો, બોલવાનો ઘરે પણ ચાન્સ ના આપતા, અહીંયા પણ ના આપતા. ઓકે, તમને લાગે કે તમારા વાળાનો અવાજ છે તો ખાલી હાથ ઉપર કરવાનો છે, પાછળ ફરીને નથી જોવાનું. પાછળ ફરીને જોયું તો તમે આઉટ, ચીકની ચમેલી રેડી. બરાબર છે? તો હવે 3 ને 3 6 ને 3 9, 3 ને 3 6 ને 8. એ કોનો રહી ગયો? એ તમારામાંથી કોના પતિદેવ નથી અહીંયા? તો પીછે કિસકે लिए घूमी हो? એ ભૂલી ગયા, અહીંયા સ્વયંવર ન ચાલતો. ચલો કઈ વાંધો નહીં, થાય ભૂલ હવે આ ઉંમરમાં. ચલો તો मैं अभी नीचे आ जाता हूँ. તમને બધાને અવાજ તો સંભળાતા જ હશે. બધા વર ખાલી એક જ વાત બોલશે, સાંભળો છો. તમને હજી વર બનવાની વાર છે, પેલા બાળકો તો બનો બરાબર. સાંભળો છો બધાય, કોઈ અંતર નહીં બોલવામાં, કઈ સાંભળો છો. જેને લાગે કે અવાજ બરાબર છે તો એ કપલ પછી પોતાની જગ્યા પર જઈને બેસી જાય. ઓકે, તો હવે 8 પતિ અને 8 પત્ની, એટલે એક અવાજ પર એક હાથ તો ઉપર થવો જ જોઈએ, સ્વાભાવિક છે. બરાબર છે? ચલો તો હવે ચાલુ કરીએ. પાછળથી કોઈ કઈ જ નહીં બોલે, એકદમ ચૂપ, બધા જ ચૂપ. તો પહેલા પતિનો અવાજ આપણે બધાએ કહેવાનું છે, ખાલી એક જ વસ્તુ, સાંભળો છો. બરાબર છે? તો સીધા જુઓ બધા. આ પેલા બ્લુ વાળાને શું તકલીફ છે? જરા આગળ સામે સીધું જોવો ને, દાંતમાં જીભ ના કટકટ કરાવે, સીધું જોજો. ચલો તો વી સ્ટાર્ટ ધ ગેમ નાઉ. સીધું જોવાનું છે. હા, આ પહેલા પતિ હવે બોલશે, સાંભળો છો. જોઈએ કોણ ઓળખી પાડે છે. સાંભળો છો? કોઈનો નથી? બરાબર. મેડમ, તમે તમારો ખોટો વર શોધ્યો છે આમાંથી. તમારા બધાએ સંભાળીને રહેવાનું, તમારામાંથી જ કોઈનો એકનો હાથ ઉપર ગયો છે આમાં માટે. ચલો કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. તમારી પાસે હવે 2 ઓપ્શન રહ્યા. હે, ઘરે 2 માંથી કોઈને એકને લઈને જઈ શકો છો. ચલો સામે બધા જો, હવે એકબીજા સાથે ગપ્પા પછી લગાવજો. ચલો હવે બીજો વર, એક વરને તો મજા પડી, બીજા વર તરફ હવે આપણે જઈએ. ચલો ચલો. સાંભળો છો? યાર શું કરો, પોતાના વરના અવાજ તો ઓળખો. ચલો કઈ વાંધો નહીં. નેક્સ્ટ. સાંભળો છો? ક્યા વાત હે, સહી જવાબ. બહુ સાંભળતા લાગો છો. થેન્ક યુ. તમે તમારી જગ્યા પર જઈને બેસી શકો છો. તમે રહી ગયા છો આથી 2 જણાએ ખોટા એકને વરનો અવાજ જ નતો ઓળખ્યો ને, એકે ખોટો ઓળખ્યો છે. ચલો નેક્સ્ટ તરફ વધીએ. સીધું જુઓ પ્લીઝ બધા. આ ત્રીજા વાળા સીધું જુઓ ને, ડાબી આંખે જોવાની જરૂર નથી. ચલો નેક્સ્ટ. સાંભળો છો? ખોટા લોકોના અવાજ ઓળખો છો. એ જ લઈ જાઓ છો તો લઈ જાઓ, જાઓ, તમારો જ છે. ક્યાં ના પાડો. તો હવે બચ્યા છે 6 પત્ની અને અહીંયા પણ છે 6 પતિ. એમાંથી એકનો અવાજ પતી ગયો છે. પતિ ગયો નથી, અવાજ પતી ગયો છે. ચલો નેક્સ્ટ બોલીએ. સાંભળો છો? એ કોઈ તો સાંભળો. ચલો નેક્સ્ટ તરફ વધીએ. સાંભળો છો? વાહ વાહ, જાઓ જાઓ. એ કેવું મસ્ત કર્યું બોલે. હાલ મન જીતવા જઈએ. ઓકે, હવે બચ્યા 5, નીચે પણ 5 પતિ. ચલો નેક્સ્ટ. સીધું જુઓ. સાંભળો છો?
એ સાંભળો, ઘરે જઈને હવે 2 જણને વરની બહુ ગાળો પડવાની છે. ચલો કોઈ વાંધો નહીં. હવે 3 અવાજ બાકી છે ને 5 પત્નીઓ છે. જોઈએ કોનો અવાજ સાંભળે છે. સાંભળો છો? આ કેટલી વાર સાંભળવાના પણ? તમે તો બધામાં હાથ ઉપર કરો. આ જ છે તો પહેલા વાળા કોણ હતા? પહેલા વાળા પર મન થયું, આમ અવાજ સારો છે, હા પાડે તો લઈ જઈએ. આ વખતે ખરેખર સાચું છે, લઈ જાઓ પ્લીઝ. તમે જ સાચવી શકો. થેન્ક યુ. હવે બચ્યા 3 પતિ અને 4 પત્ની. 1 ને 2 લઈ જવા મળશે. ચલો સ્ટાર્ટ. સાંભળો છો? વાહ, આવા પત્ની તો કોઈ પણ સાંભળે નહીં. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. બચ્યા 3, અહીંયા 2. ચલો હવે તો સંભળાઈ જ જાય. સાંભળો છો? નહીં? ચલો બીજા શોધીએ. સાંભળો છો? એ ભાઈ પતિ ગયા મારી પાસે. હવે તો અવાજ સાંભળો. ચલો હવે કોઈ બીજાને પૂછીએ. સાંભળો છો? અરે શું વાત છે. હવે 2 પતિ બચ્યા છે તમારી પાસે. જરા તમે બરાબર પાસે આવી જાઓ એકબીજાની આમ જરા. બસ સરસ. ચલો હવે 2 પતિ એટલે 2 અવાજમાં બધું પતી જશે ફાઇનલી. હવે આપણું કામ, આજનું કામ પતશે, સમાપ્ત. સાંભળો છો? કેવા છો? 2 જણમાંથી કોઈ તો ઓળખો. ચલો છેલ્લો અવાજ સાંભળી લો, જોઈએ સાચું છે કે ખોટું. સાંભળો છો? સાંભળો છો? થેન્ક યુ. એ ડબ્બા સામે નહીં પડે તને. થેન્ક યુ સર. એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય પ્લીઝ. તો હવે મારી સાથે એક બહુ જ ખાસ વ્યક્તિ જોડાયા છે. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, દી કુશાલભાઈ જ્વેલર્સ. તમે સાંભળ્યું હશે, એ નામને કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. અને એમના દીપક સર આપણી સાથે અહીંયા સ્ટેજ પર છે. દીપક સર માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય પ્લીઝ. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, લેટ્સ હેવ દીપક સર ઓન ધ સ્ટેજ. દીપક સરનો સપોર્ટ આજની આ સાંજમાં બહુ ઉમદા રહ્યો છે. અને અહીંયા એક પછી એક સુપર. કેન આઈ પ્લીઝ હેવ ધ ફેમિલી ઓન ધ સ્ટેજ પ્લીઝ. એકવાર દીપક સરની ફેમિલી માટે બી જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય પ્લીઝ એવરીવન. દીપક સર, તમે અત્યાર સુધી ઘણા બધા મોટા મોટા શોઝ જોયા હશે, ઇન્ટરનેશનલ, નેશનલ, પણ આજે મેં પણ ઘણા બધા નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ શોઝ હોસ્ટ કર્યા છે. પણ આજે જે ક્રાઉડમાં જે એનર્જી છે ને, તમને આ ખાલી સીટ્સ દેખાઈ રહી હશે પણ અવાજથી જ્યારે લોકો ભરી દે છે ત્યારે અદ્ભુત છે. ઓડિયન્સ એકવાર દેખાડીએ. સો સર, તમારી આખી ફેમિલી આજે અહીંયા આવી છે અને બહુ જ પ્રખ્યાત તમારું નામ છે સમગ્ર સુરત શહેરમાં. કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. તો જ્યારે ટેલેન્ટને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આજની સાંજમાં તમે બધા અહીંયા પધાર્યા છો, તો શું કહેશો તમે આ ટેલેન્ટ અને બાળકો માટે? ખાસ કરીને સુનિલ જે છે અને જે દર વખતે મહેનત કરી અને એની ટીમ મારી પાસે આવતી હોય છે અને કંઈક ને કંઈક નવું સુરત માટેની વાત હોય છે કે ભાઈ સુરતની ટેલેન્ટ છે, મારે બહાર લઈ આવી છે, મારે આમ કરવું છે. અને જ્યારે એની વાત જોઉં છું ને મને સામેથી એવું મન થઈ જાય કે હું એની સાથે કંઈ પણ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરું કે એને પ્રોત્સાહન કરવા માટે ટ્રાય કરું. તો ખાસ કરીને સુનિલ અને ટીમને ખાસ અભિનંદન અને થેન્ક યુ. એક નાનકડું જેસ્ચર છે તમને સન્માનિત કરવા માટે. તો એન્ટાયર ફેમિલી આજે આવ્યું છે. સો વેરી રીલી હેપી. સુનિલ સર, શું કહેશો? ही इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. તમને હંમેશા સપોર્ટ કરે છે ફૂલ ફैमिली. बहुत जब कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि हमको आगे बढ़ना होता है या फिर कुछ छोटा सा भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो हमारे जो सामने चेहरे होते हैं कभी कभी वो भी मतलब नहीं ऐसा लगता है कि नहीं इनसे कुछ सपोर्ट मिल पाएगा या आगे बढ़ पाएंगे. पर दीपक सर हमको जानते भी नहीं हैं, पर उनको एक कहीं ना कहीं दिखा कि हमारी कोशिश, हम कुछ नया करना चाहते हो. तो जब भी हम छोटा करें या बड़ा करें, वो किसी भी सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहते हैं, कभी भी खड़े रहते हैं. थैंक यू सर.
સો એક સરપ્રાઈઝ છે, દીપક સર આજે ફૂલ ફેમિલી સાથે એક ગ્રુપ પરફોર્મન્સ આપવાના છે આપણે લોકોને ડાન્સનું. સો થેન્ક યુ સો મચ ટુ ધ એન્ટાયર ફેમિલી. થેન્ક યુ ફોર બીંગ સચ સ્વીટ હાર્ટ્સ. થેન્ક યુ સો મચ. तो હવે આજની આ सांझમાં खून पसीने की मेहनत के साथ, लगन के साथ आज की शाम में आप जो यहाँ पे देख रहे हैं वो तो फाइनल प्रोडक्ट है, बराबर है, द लास्ट फाइनल प्रोडक्ट. પણ આ પ્રોડક્ટ બની કઈ રીતે, બિહાઇન્ડ ધ સ્ટેજ જે ડ્રામા થયા, જે મસ્તી થઈ, એ બધી વસ્તુઓ એના માટે हमने हमारे जासूस कोने कोने में छोड़े हुए थे और यही जासूस जो हैं वो उनकी एक प्यारी सी वीडियो लेके हमारे सामने आ रहे हैं. तो आइए देखते हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस एंटायर इवनिंग. लेट्स चेक इट आउट. Hello, I am Anya's parents and आन्या को डांस करना अच्छा लगता था पर वो इतना खुल के नहीं कर सकती थी. फिर मैंने हमारे एक रिलेटिव से सर के बारे में सुना, फिर मैंने उसको 3 इयर्स पहले डाला. तो वो डांस क्लास में जाती थी, कुछ भी नहीं आता था उसको और 3 इयर्स में उसमें बहुत इम्प्रूव है और वो डांस क्लास एक भी मिस करना नहीं चाहती. बहुत एंजॉय करती है डांस क्लास में. उसका बहुत अच्छा ग्रुप है, मैन सर से भी एकदम फ्रेंडली है. सबसे ज़्यादा उसको मैन से बहुत अच्छा लगता है, मस्ती करती है, बातें करती है. बस 1 ईयर से मैं इसका वीडियो और इसका डांस सब देख रहा हूँ. यहाँ पे भी ये डांस करने जाती है तब मेरे को प्राउड फील होता है कि ये इतना अच्छा कर सकती है और मैं भी इसकी वजह प्राउड कर सकता हूँ. डिसाइड किया था कि सर मैम भी आएंगे मेरे पार्टी में. मेरे 20 फ्रेंड्स हो या 26 हो, मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड्स तो मेरे सर और मैम ही है, तो उनको भी मेरी पार्टी में आना ही पड़ेगा. और आप एकदम फैमिलियर हो, कभी हमें नहीं लगा कि आप एज ए सर और मैम बच्चों को ट्रीट करते हैं. गुड सर गुड एंड मैम गुड. मैं प्रियांश का फादर हूँ. प्रियांश को डांस करना बहुत पसंद है, उसकी हॉबी है डांस और म्यूजिक वगैरह. और प्रियांश स्टडीज के साथ साथ डांस क्लास काफ़ी प्रेफर करता है कि मैं वहाँ जाऊँ. काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिलते हैं उनको वहाँ और ऐसे लगता नहीं, एज ए फैमिली माहौल बन जाता है पूरा वहाँ. हाय, मैं यशवी की मॉम. यशवी बहुत सालों से GLI जा रही है और जो प्यार और जो सपोर्ट मुझे कुनिका मैम और सुनील सर से मिला है, मुझे नहीं लगता और किसी भी क्लास से मिल पाता. बहुत कुछ सीखा है उसने. ग्रेड 1 से लेकर मैं सोचती हूँ कि मुझे जिस स्टेप पर मेरी बेटी को देखना है उसके लिए जो सपोर्ट सर आज दे रहे हैं, इट्स रियली बहुत ही हार्ट वार्मिंग. और मैं कह सकती हूँ मैं जितना भी थैंकफुल उन्हें कह सकूँ वो कम होगा. जैसे सर ने अपना बैकग्राउंड शुरू किया 0 to 100, तो वो शायद बहुत 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 ही कुछ
वर्बली मैं शायद मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो सर से इतना कुछ सीखे कि अगर आपको अगर 0 से भी शुरू करो तो आप 100 तक पहुँच सकते हो, अगर आप में वैसी लगन हो, वैसी पैशन हो कुछ सीखने के लिए। आज भी मैं कितनी बार सर को देखती हूँ तो ही गोज एंड गोज ऑन, लाइक वो चलता ही रहता है कि नहीं कुछ नया सीखना है और कुछ नया देना है, कुछ नया सीखना है और कुछ नया देना है। वो जो चीज़ है वो बच्चों तक भी जाए तो बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। आई रियली थैंकफुल टू ऑल DLI टीम, DLI ग्रुप। એ DLI ક્લાસમાં અરાઉન્ડ લાસ્ટ 4 યર્સથી જાય છે. કુનિકા મેમ અને સુનિલ સર એમના ક્લાસ સર છે, સર મેમ છે. એના પાસેથી ઘણું બધું સારું શીખી છે. અમને એમના પર પ્રાઉડ છે ને એ જેટલી મહેનત કરે છે એ મહેનત મારા હિસાબે અત્યારે કોઈ બી ડાન્સ ક્લાસ સર ટીચર નથી કરતા. એ કમાવાના બિઝનેસ પણ નથી કરતા, એ છોકરાઓને આગળ લાવવાના ધોરણે એમનો ક્લાસ ચલાવે છે. તો અમારે બી તમને એટલી બધી વિનંતી છે કે તમે તમારા છોકરાઓને DLI ક્લાસમાં મોકલો અને તમારા છોકરાઓનું પરફોર્મન્સ એક વર્ષમાં જુઓ કે તમે ક્યાંથી ક્યાં વધી રહ્યા છો. हाय, मैं अर्शन की मम्मी बोल रही हूँ। मेरा बच्चा यहाँ पे 3.5 ईयर से आ रहा है और इतने टाइम में भी आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ही इज़ अनसेफ या उसको अभी कुछ पार्शलिटी किया हुआ है। मैम और सर दोनों का इतना कोऑपरेटिव नेचर है और इतना ऐसे भी नहीं है कि खुद का प्रायोरिटी लेके मतलब बच्चे का ठीक है स्टार्टिंग में सिखा दिया फिर भी कुछ नहीं हम लोग पहले करें, ऐसे कुछ नहीं। सबको ऐसे प्रायोरिटी देके इतना अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और सिखाते हैं। और बहुत सारे क्लासेस चलते हैं लेकिन अभी तक इतने कोऑपरेटिव सर टीचर नहीं देखे कि इतना खुद का स्पेयर टाइम देके सिखाना बिना ऐसे नहीं बच्चा को नहीं चल रहा है तो ऐसे चलो कि अभी उसको निकाल दिया नहीं करवाना, ऐसे नहीं पूरा टाइम एनर्जी मोटिवेशन सब इतना देके सिखाते अपने बच्चों की तरह। पर्सनल सोलो डांसेस भी उसके वीडियो सब इंटरनेट पे भी उसका शूट करके दिया, उसमें भी उसने सर का भी वीडियो दिया हुआ है जिसमें 7 डे खड़ा हुआ लोगों ने देखा भी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और मैं प्रे करती हूँ कि और आगे बढ़े और सर और मैम का ऐसे ही ब्लेसिंग सबको भी मिला करें और बच्चों को भी फर्दर इंटरेस्ट और उसमें बढ़ाएं। हाय फ्रेंड्स, प्रीशा's मॉम शीतल। प्रीशा को DLI डांस अकेडमी में आज 8 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग में सर मेरे घर में सिखाने आते थे, वहाँ से शुरुआत की थी। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक होम टीचिंग में प्रीशा सर की फर्स्ट स्टूडेंट रही है। एंड मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि आप भी समझ सकते कि आज 8 साल से अगर मेरी लड़की एक ही जगह पे सीखने जा रही है DLI में सुनील सर के पास, तो मैं कितना सेटिस्फाइड होंगी। और सर और मैम का बहुत कोऑपरेटिव नेचर है। हाँ, मैं बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ क्योंकि लड़कियों के लिए रहता है, पर नहीं वहाँ पे मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर फील करती है। लेट नाइट तक प्रैक्टिस करती है, कभी सर नाइट भी लेते हैं पर वो कभी मना नहीं करती है। सर और मैम का भी इतना सपोर्ट रहता है कि नहीं हमें भी कोई टेंशन नहीं है और वो लोग इजीली इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना इनका सपोर्ट भी इतना रहता है। प्रीशा ने जब डांस स्टार्ट किया था तब तो वो बहुत छोटी भी थी और उसको डांस आता भी नहीं था, डांस का बिल्कुल नहीं पता था। पर आज सर के सपोर्ट से मतलब उसको बहुत सारी स्टाइल्स आती है और उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। इतना ही कि मेरी मतलब फैमिली में या घर पे भी जाते हैं तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि नहीं सब मुझे बोलते कि हाँ ये तो प्रीशा की मम्मी है, वो डांसर है ना टॉम बॉय जैसी। प्रीशा ने काफ़ी सोलो डांस भी किए हैं, सूरज चैनल में भी गई थी, ड्यूट डांस में भी गई थी, कॉम्पिटिशन्स में ग्रुप डांस में भी कई जगह सर लेके गए हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते हैं और हर कॉम्पिटिशन में वो लोग प्राइज़ तो लेके ही आते हैं, तो वो सोलो हो या ड्यूट हो या ग्रुप डांस हो। उनकी जो कोऑर्डिनेशन रहती है, जो स्टाइल रहती है, एंड वी आर हैप्पी कि मेरी बच्ची को भी आज इतने अच्छे सर मिले हैं कि नहीं वो उन सर और मैम के सपोर्ट से आज इतना आगे बढ़ रही है और ज़्यादा सर उनको आगे भी ले जाए। और सर को मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा है कि आज होम टीचिंग में आते थे 1-2 बच्चे से स्टार्ट करके आज उनके पास 60-70 स्टूडेंट्स हैं
और एक क्लास या दूसरे क्लास में चेंज किया, आज इतना अच्छा DLR डांस एकेडमी के साथ पूरा क्लास है, तो सर भी और आगे बढ़े और हमारे बच्चों को भी इतने साथ आगे लेके जाए, बस वही मेरे लिए तो है। थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत खास परफॉर्मेंस तुम्हारी सामने रजू करवाना जो वन परफॉर्मेंस जो डेडिकेट करता है आज के इस कुछ पलों को सिर्फ हमारे ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया के उन जवानों को जो एक पल भी नहीं सोचते अपनी जिंदगी की बाजी लगाने से पहले अपनी मातृभूमि, अपनी राष्ट्रभूमि के लिए सरहद पर डटे रहते हैं ताकि हम जैसे आम इंसान उस सरहद के इस पार महसूस रह सके। बड़े ही गर्व के साथ, सम्मान के साथ पूरी दुनिया के इन बहादुर सैनिकों के नाम करते हैं इस अगले परफॉर्मेंस को। जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम आवर अमेजिंग टैलेंट्स ऑन द स्टेज। एक ओरियो तुम्हारा, एक मेरा, चलो पहले ट्विस्ट करो। पापा पापा आप कब आओगे? बेटा मैं इस बार तो नहीं आ पाऊंगा। मतलब आप इस बार भी हॉलीडेज में हमारे साथ नहीं रहोगे? मैं नेक्स्ट हॉलीडेज में आऊंगा ना, पक्का वाला प्रॉमिस। डन करो। दुनिया भर में तीसरा विश्व युद्ध होने की आशंका है। दुनिया भर के सैनिक अपने अपने देश को बचाने के लिए तैनात हो चुके हैं। दुनिया भर के सरहदी इलाकों को खाली करवा दिया गया है। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. ये किस डगर पे चल पड़ी है जिंदगी, ये किस डगर पे चल पड़ी है जिंदगी। हर तरफ है बेबसी ही बेबसी, ये बता ये जिंदगी है क्या, ओ मौला ये बता ये जिंदगी है क्या। दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया भर के देशों में जंग छिड़ चुकी है। गम सीने में ठहरा है, अंधेरा और भी गहरा है। गम सीने में ठहरा है, अंधेरा और भी गहरा है। सांसें आती जाती हैं लेकिन हर सांस पे पहरा है। ना मंजिल की है खबर, ना मंजिल की है खबर, ना राहों का ही है पता। ओ मौला ये बता ये जिंदगी है क्या, ओ मौला ये बता ये जिंदगी है क्या। आज जंग का 5वां दिन है। दुनिया भर में एक सन्नाटा छा गया है। देश भर की बॉर्डर पे सैकड़ों सैनिकों की मारे जाने की आशंका है।
घनी अब जाएंगे कौन से दर फूंक दिया अपना ही घर रब जाने कमजोर हूँ मैं या कि मैं हूँ ताकतवर ना मंजिल की है खबर ना मंजिल की है खबर ना मंजिल की है खबर ना राहों का ही है पता ओ मौला ये बता ये जिंदगी है क्या ओ मौला ये बता ये जिंदगी है क्या Thank you so much. That was a very touching, very beautiful performance. फिर से एक बार सलाम कहते हैं हमारे देश के वो सारे जवानों को और उनसे भी ज़्यादा जो ज़्यादा ताकतवर है वो है उनकी फैमिलीज़ क्योंकि जानते हुए कि जहाँ खतरा है जहाँ से वापस आना ये शायद कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ भेजना क्योंकि जानना कि उनसे ज़्यादा जब अपने परिवार वालों से ज़्यादा मातृभूमि की ज़्यादा महत्व है तो ये सर फख्र से ऊंचा कर देता है। अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? हम लड़के अपनी जो हम जैसे चाहते हैं ना जैसे हम क्रश कहते हैं उनसे हम अपना इजहार नहीं कर पाते। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप में से कितने पति हैं जो अपनी पत्नी से आई लव यू बोलने में हिचकिचाते हैं? सब बोल देते हो ऐसे बिंदास, ये सांभर आई लव यू। वेरी नाइस सर, आप लोगों से सीखना पड़ेगा। मैं आई एम स्टिल नर्वस। मुझे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कोई पसंद आ जाए तो मैं जाके बोल नहीं सकता एक्सक्यूज मी मुझे आप पसंद हो। पहले तो एक्सक्यूज बहन जी, नो नो वी डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी टैलेंट से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं और कैसे कहा जाए किसी को ये हमें बताना चाहते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए फॉर द लवली किड्स। और ये परफॉर्मेंस स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 साल से लेके 5 साल के एज ग्रुप के छोटे और क्यूट बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट्स cheer them and have them on the stage. Let's have the music. आज की शाम का सबसे क्यूटेस्ट परफॉर्मेंस। तालियां हो जाए, come on everyone. बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। इश्क बुलावा मैनू, तेरे नाम दा आया नी। तेरे पिछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी। इश्क बुलावा मैनू, तेरे नाम दा आया नी। तेरे पिछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। All right, that was beautiful. आ गया बाप विलन बन के। जाने तो क्या बोलूं मैं यार। अच्छा, आप में से कितनों की लव मैरिज हुई है? यहाँ पे कोई है लव मैरिज वाला? आपको तो लगता ही है, सामड़ो छो पे बिल्कुल सुन लिया था। आपकी भी लव मैरिज हुई है? वेरी नाइस। तो इनको पूछते हैं यार लव हुआ कैसे? इनके कहाँ है आपके हस्बैंड? कहाँ है? कहाँ गए? कहीं बाहर चले गए? इनको तो लव हो भी सकता है यार, उनके पास तो हुनर भी है। यहाँ पे बिना हुनर वालों को भी लव हो जाता है तो अलग बात है। यहाँ पे कोई है जिनके लव मैरिज हुआ है यहाँ पे? अच्छा सर, आपको पूछते थोड़ी सलाह वाला दे दो हम जैसे लोगों को यार कि लव होता कैसे है। सर, पहले आपको ये पसंद आए या इनको आप पसंद आई? पहले मेरे को ये पसंद आई।
ऐसे हम हमारे नसीब कहाँ के पहले इनको हम पसंद आए। ये तो सीधी सी बात है। आई मीन होता नहीं है ऐसा कभी जिंदगी में, कभी हमारे साथ तो नहीं हुआ आज तक मतलब। अच्छा तो सर बताइए इजहार कैसे किया था बाद में? मेरा चाचा का लड़का है, उसके मामा की लड़की है। तब आप जरा दोनों सामने आ जाओ, लोग जानना चाहते हैं कौन है जिनका इतना पास का रिश्ता है कि आपका चाचा का लड़का है वो इनके मामा की लड़की है क्या? सर एक मिनट जरा प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट यू। हाँ आइए आइए आइए, जोरदार इनके लिए तालियां हो जाए प्लीज। लव मैरिज है। हाँ तो क्या रिश्ता बताया कि आपके चाचा का लड़का इनका कौन है? बनाओ जल्दी। इनके चाचा का लड़का इनका बुआ का लड़का है, तो आप भाई बहन तो नहीं हुए? यार रिश्ता पता है, मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज है। तो फिर कैसे बात पहुंचाई आपने? शादी में मिले थे पहली बार, शादी में देखा। आप जाने तो ये अच्छे से बोलते बताएंगी, आप बताओ। शादी में उन्होंने प्रपोज कर दिया। आपकी बहन की शादी में आपको प्रपोज कर दिया, क्या कहा था? तुम मुझे बहुत पसंद हो। आपने क्या कहा? मम्मी से पूछ। ये हमारे देश की लड़कियों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम उसको पसंद हो ना, उसकी माँ को पसंद आना बहुत जरूरी है भाई। तो दैट इज वेरी नाइस। तो आपकी मम्मी को बाद में पसंद आए? वेरी नाइस। तो आपने ऐसा तो क्या किया मम्मी को पसंद आया? आपको मम्मी को पटाने के लिए क्या किया कि मम्मी को पसंद आ जाओ आप? आपने पटा लिया? क्या बात है यार, आपके जैसी जो है वो सबको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा भी सबको मिले। आप भी सबको मिले? नहीं नहीं, आपके जैसा सबको मिले। शी लाइक नहीं नहीं ये मेरा ही है, प्लीज इसे मेरे लिए रखो, बहुत मेहनत की इसने मेरे लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ अगला क्यूट परफॉर्मेंस हमारे लिए तैयार हो चुका है। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। द नॉर्मल किड्स कमिंग अप ऑन द स्टेज, एज ग्रुप ऑफ 4 to 6 years। वाओ, बड़ी बड़ी तालियां हो जाए फॉर ये छोटे छोटे किड्स ऑन द स्टेज। इतनी मेहनत करते हैं, स्टेज पे बच्चा सो गया है, उठाओ इसे। उठ जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। उठा नहीं अभी तक? आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीधी बजा, Why can't you? Idiot! Why can't you? होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आवेश में, अरे भैया आवेश में, अरे चाचू आवेश में, अरे भैया आवेश में। चलो बेटा जल्दी रेडी हो जाओ, ट्यूशन का टाइम हो गया है। Is your homework ready?
अक्षर जो नाचे क्या खाई है भांग? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। और घुमा सीढ़ी बजा के कौन भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। चलो सो जाओ जल्दी, सुबह स्कूल जाना है। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होटो को करके गो, होटो को करके गो, सीटी बजा के बोल। मुर्गी गाँव जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल। अरे मुर्गी ऑरेंज मैन, अरे बकरे ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज तो भाई इस परफॉर्मेंस में तो था ऑल इज वेल। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज द नेक्स्ट परफॉर्मर जिनका नाम है प्रिशा। प्रिशा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हट जा, हट, मेरा घर है, हट जा। कौन है ये क्यों ऐसा कर रही है? जब से इसकी पूरी फैमिली एक हादसे में जल के मर गई है, तब से उसका यही हाल है। ना ही वो घर में किसी को आने देती है और ना ही वो खुद यहाँ से जाती है। एक दूसरे से करते हैं प्यार। हट जा, हट जा यार, ये मेरा घर है, मेरे घर के पास मत आना। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई।
कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा है इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। एक दूसरे से करते हैं प्यार। हट जा। What a beautiful performance! जोरदार तालियां और जोरदार होनी चाहिए. Come on everyone! Wow! काफी सारे लोगों को मैं देख रहा था यहाँ पे, कोई एक्सप्रेशन नहीं था फेस पे, एकदम ब्लैंक थे क्योंकि परफॉर्मेंस देखने में कहीं खो गए थे। और जब एक आर्टिस्ट अपनी ऑडियंस के साथ ऐसे कनेक्ट करता है तो उनका ये काम जो है वो सार्थक होता है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दैट वी गेट टू सी हियर। सो मैं इस मौके पर डी अलाइव को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही रॉ टैलेंट होते हैं, उन्हें सिर्फ डांस का शायद शौक होता है या फिर हमें डांस का शौक होता है और हमारे बच्चों को हम ऐसे क्लासेस में भेजते हैं। लेकिन वहाँ पे उस पहले दिन से लेकर आज यहाँ पे स्टेज शो तक का जो इम्प्रूवमेंट, जो डांस के प्रति प्यार जो निखर के आता है, ये हमें देखने को मिलता है। सो एक बार डी अलाइव के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एवरीवन। सुपर ब्यूटीफुल। और अब स्टेज पे मैं बुलाना चाहूंगा द नेक्स्ट परफॉर्मर जिनका नाम है वर्शिल। वर्शिल, लेट्स हैव वर्शिल ऑन द स्टेज। तेरे नैना बस दी बाबा का ध्यान कहाँ है? बाबा ध्यान दीजिए। बाबा की वर्षिल जी, बाबा की जय हो।
वही मैं सोचूं कि आजकल हमारे देश में बाबा कम क्यों हो रहे हैं। बाबा बेब्स के भी जा रहे हैं आजकल। जोक्स अपार्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। और उनका नाम ही इतना अच्छा है कि उत्सव मनाने को दिल करता है। उत्सव के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उत्सव यहाँ के बड़े पॉपुलर पार्टिसिपेंट लगते हैं। चलिए तो एक बार उत्सव के लिए आवाज हो जाए। उत्सव इधर आ बेटा, क्या हुआ? उत्सव के लिए जोरदार तालियां बजाओ प्लीज। उत्सव किसे याद कर लिया भाई? कौन है वो? मेरे पेरेंट्स। ये सेंटी मार गया लड़का। एक बार जोरदार तालियां बजाओ प्लीज यार। दैट इज वेरी स्वीट यार, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड DL के साथ कैसे जुड़े हो बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले है ना बैक डांसिंग करता था, तो सर मैम मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देते थे। उसके बाद मैंने सर मैम से बात की और सर मैम ने बोला ठीक है। उसने उन लोग ने फिर मुझे असिस्टेंट में रख लिया। बैक डांसिंग के साथ अभी सपोर्ट पे आए हैं सुनील सर। एक बार आ जाओ यार यहाँ पे, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे यार? मतलब आप जो है वो जौहर बन गए। मतलब आजकल आप तो हीरे को तराशते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। नहीं ऐसा नहीं है। और काम एक चीज़ होता है ना, जैसे कि हमको हमारे जैसे ही लोग मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में भी बहुत सारे असिस्टेंट्स आए, बहुत सारे चेंज हुए, बट इनको हम असिस्टेंट नहीं बोलते। ये हिस्सा एक जिस तरह से ये खींचते हैं, मतलब काम इस तरह से करते हैं, दिन रात काम करते हैं। ऐसा जैसे कि कोई चीज़ है हम कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, इनको हमारे बच्चों से क्या लेना देना, बट इनको काम इतना अच्छा लगता है, हमसे इतना अच्छा लगता है, तो हम हमारे बच्चों को जितना टाइम देते हैं उससे ओवर टाइम ये रहते हैं हमारे साथ। रात को क्लास पे सो जाते हैं, खाने का कुछ ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये हमारे जैसे ही है। सो आप सोच रहे होंगे ये सब लोग कौन है? ये छोटी सी मतलब छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। छोटी सिस्टर है। और ये भी एक और आ गई है। आप टेंशन मत लो, हम इन सबसे परफॉर्म करवाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ पे खाली ऐसे झप्पी पा के काम हो जाएगा। सो ये इनको परफॉर्म करवाना है सुनील सर, तो ये सारे के सारे परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं। परफॉर्म तो नहीं कर रही अब से?
सो इन सबका परफॉर्मेंस हम देखेंगे। कहते हैं ना कि एक अच्छा कप्तान तभी अच्छी मैच जीत सकता है जब अच्छी टीम उनके साथ हो। तो पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये वही लोग हैं जो आपके बच्चों को इतना औसम तरीके से सिखा रहे हैं कि आज वो यहाँ पे तालियों के हकदार बन रहे हैं।